میں آج اپنی آہٹ ٹیم کے ساتھ ایک ایسے قبرستان کے پاس آیا ہوں جو بہت ہی زیادہ پر اسرار ہے۔ سر جی ادھر آؤ۔ ایک منٹ یہ آواز سنی؟ اور رات کے اس وقت قبرستان میں آنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ دیکھو وہ کوئی دکھاؤ مجھے کیمرہ لگ مین، رہا وہ ہے کیا کچھ چیز ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں معاذ اور میں آج اپنی آہٹ ٹیم کے ساتھ ایک ایسے قبرستان کے پاس آیا ہوں جو بہت ہی زیادہ پر اسرار ہے۔ 800 سال پرانا قبرستان۔ یہاں کے علاقین کا کہنا ہے کہ یہ قبرستان ایک اتنا خوفناک اور پر اسرار ہے، یہاں پہ بہت ساری مخلوقات دیکھی گئی ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے عاملین بھی آ چکے ہیں جو یہاں چلا کشی کر چکے ہیں۔ اس قبرستان میں کس طرح کی مخلوقات ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں، چلیں شروع کرتے ہیں۔ تے سپ رہتا ہے، بابیا منیا ٹھیک ہے، کن تک انہوں کچھ کہیے نا کچھ بھی نہیں کہہ، ٹھیک ہے، کدو شیر ہو گئے ادو آتا اتنے جن رہتے ہیں اور بابا چیزاں رہنیاں تے 2-3 بجے اتنے بندیاں نے شیریا انہوں تے لڑیا بھی ہے۔ ہوں کن تک شیر ہو گئے نا ان تک بابیا نے حکم کچھ بھی نہیں کرتا۔ بابے مننے تنے ہے بابا نیشا سرکار، ٹھیک ہے، انہوں نے نام تو بغیر نہیں شیر کا کسی نے۔ قبرستان تے بڑے جن بروز ہر چیز رہتی۔ اس وقت ہم قبرستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ جس طرح علاقین نے بتایا تھا کہ یہ قبرستان بہت زیادہ پر اسرار ہے، واقعی دکھنے سے بہت زیادہ پر اسرار لگ رہا ہے۔ یہ رات کے 11 بج چکے ہیں، تھوڑی دیر میں ہمیں داؤد صاحب جوائن کریں گے اور یہاں اتنی پر اسرار آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک منٹ یہ آواز سنی؟ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جدھر سے گھنگروں کی آوازیں آ رہی ہیں باقاعدہ، اور لوگوں نے بھی اس جگہ کا بتایا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی آوازیں آتی رہتی ہیں، کبھی کسی مخلوق کا ہونا، کسی کے چلنے کی آوازیں۔ اور میں بھی جب ادھر آیا ہوں تو میرے کندھے ایک دم سے بھاری ہو گئے ہیں، سر میں درد شروع ہو گیا ہے اور میری ہارٹ بیٹ ایک دم سے تیز ہونے شروع ہو گئی ہے۔ اب ہم اپنے مہمان داؤد کو بلائیں گے جو ہمارے ساتھ مل کر پیرانورمل انویسٹیگیشن کریں گے، کیونکہ یہ اکیلے میرے بس کی بات نہیں ہے، ان کا ہونا لازمی ہے۔ السلام علیکم داؤد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اس شو میں آئے۔ داؤد صاحب، جیسے ہی میں قبرستان میں انٹر ہوا تو ایک دم سے میرے کندھے بھاری ہونے لگ گئے، سر پکڑنے لگ گیا، ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ بہت سارے میں جگہوں پہ جا کر انویسٹیگیشنز کر چکا ہوں، لیکن جیسے میں اس قبرستان میں آیا تو میرے ساتھ یہ معاملات ہونے لگ گئے۔ آپ کا شکریہ اور آہا ٹیم کا شکریہ، انہوں نے ایک معلوماتی پروگرام جو ہے بالکل، اور پلس رات کی اس پہر میں قبرستان آ کر جو ہے ایک انویسٹیگیشن کا آغاز کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قبرستان کے اوپر جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے تو وہاں پہ نہ صرف جنات ہوتے ہیں بلکہ ارواح بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اور رات کے اس وقت قبرستان میں آنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اکثر عاملین لوگ جو ہے رات کے اس پہر میں قبرستان میں جا کے عمل کرتے ہیں، کچھ روحانی عمال بھی کرتے ہیں، کچھ جو ہے کالے علم کے لوگ بھی عملیات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک قبرستان کی جگہ کو اسیب کی جگہ کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ یہاں پہ شیاطین کا راج ہوتا ہے، تو ارواح بھی ادھر ہوتی ہیں اور نیک روحیں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں۔ داؤد صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا۔ ہماری ٹیم ممبر ایک ہے آمنہ، جسے اس طرح کی مخلوقات نظر آتی ہیں باقاعدہ، وہ ایسی پر اسرار چیزیں دیکھ سکتی ہے۔ میں آپ کو ملواتا ہوں۔ آمنہ، خیر ہے؟ آمنہ، آپ کو کیا ہوا؟ بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے میری۔ ٹھیک، داؤد صاحب ذرا چیک کیجئے انہیں، ایک دم سے ان کا سر بھاری ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے طبیعت کو؟ آوازیں بھی آ رہی ہیں بہت عجیب عجیب۔ آوازیں کس طرح کی؟ کوئی ٹائپ اور کچھ چیزیں جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں مجھے۔ کوئی یہاں پہ یہ آس پاس میں؟ ہاں، یہاں آس پاس میں۔ ناظرین دیکھیں، یہاں پہ بہت زیادہ آوازیں آئی جا رہی ہیں جو بہت زیادہ پر اسرار ہے۔ اسے کیا ہوا؟
दाऊद साहब जरा चेक कीजिए, इससे अचानक क्या हुआ? आमना ठीक हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि इन जगहों पर जाने से पहले एहतियात करनी चाहिए। और ये जो जगह होती हैं बड़ी पुरसरार होती हैं, कब्रों के दरमियान और कब्रों पे इतने असरात होते हैं। तो आयतल कुर्सी का मैंने वैसे हिसार कर दिया था आपके आने से पहले यहाँ जी। पे, क्योंकि हिसार से भी बड़ी पावर होती है। लेकिन आप को शायद अंदाज़ा था या नहीं कि इसके ऊपर ऑलरेडी असरात है इस बच्ची पे, तो इसको चीज़ें फील हुई हैं। और ये जो आमलीन लोग होते हैं उनको तो फील हो जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ जिन्नात का असर होता है या यहाँ कहाँ चीज़ें होती हैं। मैं दम करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। दाऊद साहब आप इन पर कोई पढ़ाई करेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस वक्त आमना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप जैसे देख सकते हैं। कैमरे मेरे को, कैमरामैन ज़रा रिकॉर्ड करो। कैमरामैन ये होश में आ रही हैं। आमना ठीक हो? उठो। ठीक हो आमना आप? आमना क्या हुआ था आपको? मेरे कानों में आवाज आई है। किस तरह की आवाज़ थी? क्या आप कुछ बता सकती हैं? आवाज सुनते ही मैं बेहोश हूँ। कुछ बता सकती हैं कि किस तरह की आवाज़ थी? भाई आपने सुना? ये यहाँ कोई वाकई कोई आवाज़ आ रही है, एक पीछे से कोई आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक। शायद वहां से आ रही है। क्या आमना को बता सकती हो, आपको कोई मिल रहा है इशारा यहाँ से? नाज़रीन, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ें हो रही हैं, बहुत पुरअसरार आवाज़ें हो रही हैं। हमारी एक टीम मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई है और मुझसे भी ये मज़ीद नहीं हुआ जा रहा। मेरी भी सर भारी तबीयत ख़राब होती जा रही है सर, मुझसे मज़ीद नहीं हो रहा। आप आगे करें पे इन्वेस्टिगेशन फतर। बात ये होती है कि बाज़ लोगों को इस तरह का शौक़ होता है कि इन जगहों पे जाना और वहाँ पे जाके प्रोग्राम करने का या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का। अगर आपके पास रूहानी ताकत नहीं होती या अगर आपने वज़ाइफ या पढ़ाइयाँ नहीं की होती तो आपके लिए प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि बीसियों दफ़ा हॉरर प्रोग्राम या इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्राम शुरू हुए, बिल्कुल क्योंकि उनके पीछे रूहानी बुजुर्गों का फैज़ नहीं था या पीछे सपोर्ट नहीं थी या उन्होंने अमलियात नहीं किए हुए थे, तो इस वजह से फिर बाद में उनके लिए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपकी एक टीम मेंबर की तबीयत खराब हो गई और उसके ऊपर असर था और आपको भी अपनी हिफाजत के लिए, वैसे मैंने पढ़ दिया था, आपके लिए भी पढ़ दिया था, आयतल कुर्सी का हिसार कर दिया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहशत है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पुराने दरख्त और कदीम कब्रिस्तान है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर है। और मुझे तो यहाँ पे इस तरह की भी फीलिंग्स आ रही है कि जैसे यहाँ पे कई लोग जो है आके चिलाकशी करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी होती है। जिस तरह के कई यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखें किस तरह की वहाँ पे, वो देखो वो कोई मुझे लग रहा है कोई चीज है, वो देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ है कब्रिस्तान में। या अल्लाह खैर, ये क्या है? देखें ये यहाँ पे कपड़ा भी दरख्त के साथ लगाया गया है। कई लोग इस तरह के अमल कर रहे होते हैं, इस तरह की यहाँ पे पढ़ाइयाँ भी हो रही होती हैं। ये बाकायदा यहाँ पे काले जादू किए जा रहे हैं। ये कुछ इसी तरह के अमलियात होते हैं। बहुत पुराना कब्रिस्तान है ये, रात के शहर, ये बहुत पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे और मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे कोई बैठा, वो देखे आप, वो कैमरा में दिखाओ, वो कुछ हिल रहा है, कुछ हिल रहा है। देखे ये देखें आप, कैमरा भी फोकस नहीं कर पा रहा, हिल रहा है। वो ये क्या है? इधर कोई बंदा नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, हिल रहे हैं। कुछ नजर आ रहा है इधर। फोकस करो कैमरामैन, फोकस करो। देखें ये बहुत पुराना कोई दरख्त भी है और ये बिल्डिंग भी है और ये साथ ही मीटर देखें, मीटर में ये रीडिंग कितनी बढ़ रही है और ये मीटर में रीडिंग का बढ़ना इस बात को लाजमी निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं। ये आवाज़ आ रही होगी और ये
कब्रिस्तान जो है वो इतना पुरअसरार है। ये देखें, वो देखो मुआज, मुझे लग रहा है कोई चीज़ है। वो वाकई वो कुछ हिल रही है। इधर दिखाओ, फोकस करो उधर, उस तरफ फोकस करो, उधर वाकई कुछ है नाजरीन, पता नहीं क्या हिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कब्रिस्तान में कई लोग यहाँ पे चिलाकशी करते हैं, अमल करते हैं। और ये देखें, इन कब्रों में आपको सुराख भी नज़र आ रहे होंगे। और ये देखो, इसवी कब्र, कोई चीज मुझे अभी लगी है, किसी ने मुझे ऐसे लगता है पत्थर मारा है। अभी मुझे यहाँ पे किसी ने दूर से ऐसे लगता है पत्थर लगा है मुझे, किसी चीज ने मुझे पत्थर मारा है। ये देखो, ये कब्र के अंदर सुराख, यहाँ पे रात के इस पहर में इस तरह की, और कीड़े वगैरह जो है वो अभी भी यहाँ पे। और ये बड़ा पुरस्रार कब्रिस्तान है जी, ये इस इलाके का, और 800 साल पुराना कब्रिस्तान। और यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ साथ कई आमलीन लोग जो है वो आते हैं। और वो बड़े पुराने दरख्त हैं यहाँ पे, आपको नज़र आ रहे होंगे। और वो इरज देखो, वहाँ पे वो दरख्त है, दरख्त हिल रहे। ये देखे मीटर रीडिंग देखो, ये रीडिंग देखो, कितनी ज़्यादा रीडिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे एकदम अलार्म करना शुरू हो गया है। ये देखो, ये यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, ये गोला सा कोई आग का बना हुआ है। वो उधर दाऊद साहब उधर चेक कीजिए, मुझे लग रहा है कि कोई कोई बंदा है उधर, कोई है उधर। हाँ जी, ये लग रहा है मुझे। इधर वो देखो, वो कोई बैठा लगा हुआ पढ़ाई कर रहा है, कोई देख रहा आ रहा है, नजर आ चिराग जल रहे हैं। आ रहे कौन है? कौन हो आप? ये देखो, तो बंदा है जो चिराग जला के, अगरबत्ती जला के कब्र के पास अमल कर रहा है। कौन हो? देखिए, कोई बंदा है, ये यहाँ पे अमल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और चले जाओ, मेरा अमल ना खराब करो। देखो, डरा रहा है ये। कौन हो तुम? किसने बिठाया यहाँ इधर? नाज़रीन, कब्र के ऊपर अगरबत्तियाँ चल रही हैं, यहाँ पे चिराग जल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और ये तस्वीर अभी आ जाए उसको, अक्सर लोग ये अमल कर रहे होते हैं, उनको फिर छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी पढ़ाइयाँ पता नहीं किसने बिठाया होता है, कौन से अमल कर रहे हैं और किस तरह की सूरत हाल। ये देखो, इरज यहाँ पे कब्रिस्तान पे ये मट्टी के बर्तन, और ये पुराने दरख्तों के पास, और वो उधर भी इस तरह की सूरत हाल। तो देखो, दरख्त अभी भी हिल रहे हैं। वो देखो, अगर आपका कैमरा जाए तो आपको महसूस होगा कि हिल रहे हैं। और यहाँ पे ये देखो, मीटर की रीडिंग कई कब्रों के पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो कब्रिस्तान होते हैं सेफ ज़्यादा होते हैं, कईयों पे बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन जो जगह होती हैं वहाँ पे बड़ा असर होता है। देखो इरज, ये रीडिंग आ गई, आवाज़ आ रही है, लगता है कि आगे कोई जिन्नात का असर है। प्याली पड़ी हुई है वहाँ पे। और ये देखो, रीडिंग बढ़ती जा रही है। ये किस साइड से आ रही है? ये देखो, ये आगे मुझे लगता है ख़तरा है, कोई किसी तरह का असर भी है। और ये रीडिंग बढ़ती जा रही है। जो दरख्त हिल रहे थे ये उसी तरफ है, और हमें लगता है कि उधर ना जाएं तो अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि जिस तरह वो अमल, ये देखो, ये 57, ये देखो बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। कोई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है किसी चीज की। बहुत ज़बरदस्त असर, बहुत ज़्यादा असर है यहाँ पे, ये बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, आप देखें, उल्टी होके भी कब्र के ऊपर पड़ी वो देखो, ऐसी जगहों पे इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ख़तरनाक होता है। वो देखो, कोई चीज़ लग रही है, देखो वो, जी
नाज़रीन देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मीटर में जो रीडिंग आ रही है उसमें कंटिन्यूसली जो है वो चीज़ों का असर, जिन्नात का असर, ये हवाई चीज़ें होती हैं, जिन्नात का असर होता है ऐसी जगहों पे, और शैतानी चीज़ें होती हैं। अक्सर आमल लोग जो है अमलियात करने के लिए कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और फिर यहाँ पे बैठ के कब्रिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग पुतले यहाँ पे दफनाते हैं, कईयों के पुतले मिलते हैं, और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम इलाज करवाते रहते हैं, मगर रूहानी इलाज करवाने के बावजूद हमारी सेहत, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती। तो वो यही जगह जो असेब ज़दा होती है, यहीं पे उनके पुतले, उनके पहने हुए कपड़े, इस तरह की चीज़ें दफना देते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो आप ने देखा कि इधर जिस तरह ये आमल, वो देखें अभी भी बैठा पढ़ाई कर रहा है। तो जो लोग यहाँ पे कब्रिस्तानों में ये देख रहे होंगे, तो बंदा बैठा अभी भी पढ़ाई कर रहा है और वो अपना चिला कशी और अमल में, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रीडिंग बहुत तेज़ है। तो असेब ज़दा जो जगह होती हैं वहाँ एहतियात से जाना चाहिए, अपने लिए हिफाजत की दुआएं पढ़नी चाहिए, और जो आमल लोगों के मामलात ख़राब करते हैं, इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी पढ़ाइयाँ करते हैं, तो इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि एहतियात करें। जिन्नात का असर होता है यहाँ पे, देखा यही गया है, सुना यही गया है कि यहाँ पे चुड़ैलें भी होती हैं। देखे बहुत बड़ा कब्रिस्तान, बड़ा वसी है, वो लाइट जहाँ तक जा रही है, टॉर्च जहाँ तक जा रही है, वहाँ पे कब्रें ही कब्रें नज़र आ रही हैं, और बड़ी पुरानी कब्रें हैं, और ये दरख्त बड़े पुराने हैं। साथ मुल्हका जो है वो दरबार भी है। कहते हैं कि जी दरबार के ऊपर जो है बहुत से बुज़ुर्गों के जो है वो पहरा है, और यहाँ पे दरबार में लोग अमलियात भी करते हैं, आके पढ़ाइयाँ करते हैं, और जिनकी बातनी निगाह, वो देखो क्या है, वो सुर्ख कलर का, इधर देखो जरा, कैमरा जा रहा है, जी जा रहा है, वो कोई चीज़ कब्र के पास, बिल्कुल है। मुझे लगता है उस आमल ने, जो उधर बैठा अमल कर रहा है, उसने कोई चीज़ ना रखी हो। नाज़रीन, इस कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपने देखी, मीटिंग देखी, अमलियात हो रहे हैं। ये देखें पीछे से ये अगरबत्ती चल रही है, और वो कोई बंदा बैठा इधर पढ़ाई कर रहा है। हमने कोशिश की इसको ना ही छेड़ें, चिराग जल रहे हैं, और इस तरह कब्रिस्तानों में आके हमजाद के अमल लोग करते हैं, जो कि लोगों को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए और फ़ायदे के लिए भी अमल होते हैं। और ये देखो बिल्ली की आवाज़, ये देखो आवाज़ आई है वीरज, आइए रिकॉर्ड हुई ये बिल्ली नहीं होती यहाँ पे, है, वो तो उधर से आ रही है। तो ये देखें यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि रीडिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और यहाँ पे मेरे भी कंधों पे वज़न, टांगों पे खिंचाव भी है, कमर पकड़ी और जारी बात है इसके बाद हम पानी दम करके पिएंगे, और अपना हिसार जो हमने किया हुआ है उसमें भी हैं। इस तरह की कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हों तो आप खुद से कोशिश मत करें, खुद से ना जाएं, और बहुत मुश्किल काम होता है। वो देखें, वो बहुत मुश्किल काम है कि वो बंदा बैठा चिरागों के पास अमल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और कई आमलीन लोग जो है वो पढ़ाइयाँ करते हैं यहाँ पे बैठ के, इस जगह आके चिलाकशी करते हैं, अपनी पावर को बढ़ाते हैं, और यहाँ पे लोगों के लिए अमल भी कर देते हैं, जिसकी वजह से बंदा अपना इलाज कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इलाज नहीं होता। ये प्याला रखा हो, यहाँ पे पानी या कोई चीज़, और पुरानी कब्रें, उधर भी देखें आप, कब्र के ऊपर एक प्याला पड़ा हुआ है, और वो दूर जो रोशनी अमल जो हो रहा है वो देख रहे होगे, वो अभी भी अमल जो है वो बैठा अमल कर रहा है, पढ़ाइयाँ कर रहा है। इसको बोर्ड का दरख्त कहते हैं। यहाँ पे सुना यही गया है कि बुज़ुर्ग जिन्नात रहते हैं, और ये इतना पुराना है कि ये तकरीबन 800-900 साल पुराना दरख्त है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल, ये देखिए आप, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रीडिंग आप देख रहे होंगे, 50 के ऊपर रीडिंग है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा असरात नज़र आते हैं, और खौफनाक दरख्त है, दहशत इधर है के पास, ये आप देख रहे होंगे। और
اس کے ساتھ ملحقہ دربار بھی ہے، اور یہاں پہ یہ ریڈنگ جو ہے یہ موجود ہے۔ یہ اس درخت کو اگر میں دیکھتا جاؤں تو یہاں آپ دیکھو گے کہ اس درخت کے نیچے یہ ریڈنگ موجود ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیڑے اور اس طرح کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز یہاں پہ موجود ہوتی ہیں، تعویذات اور بہت ہی اثر۔ تو ناظرین، یہ ایک جو 800 سال پرانا قبرستان تھا، یہاں پہ ہم نے پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہماری ایک ٹیم کی ممبر آمنہ، اس کی طبیعت خراب ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئی، پانی وغیرہ دم کر کے دیا، طبیعت بحال ہوئی تو وہ سائڈ پہ چلے گئی۔ اور پھر آہٹ ٹیم کے ممبر معاذ آپ ٹھیک ہو؟ اب داؤد صاحب بہت زیادہ کندھے پکڑے گئے ہیں، طبیعت ایک دم سے آ جاؤ، آپ اوپر آ جاؤ۔ صحیح طرح چلا بھی نہیں جا رہا۔ تو آپ کو کیا فیل ہو رہا تھا ابھی قبرستان میں؟ ایک دم جب شروع کیا نا ہم نے انویسٹیگیشن کرنا، تو میرے کندھے خود بخود کندھے بھاری ہوتے گئے، سر میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی کوئی طبیعت بہتر ہے؟ پانی دم کر کے دیا اب کافی بہتر ہے، اب جو آپ نے پانی دم کر کے دیا اس سے کافی فرق پڑا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی اسیب زدہ جگہیں ہوں، یا اگر آپ کے اوپر بھی اسیب کا اثر ہو، تو ہماری ٹیم کو آپ ضرور دعوت دیں۔ ہم نہ صرف آپ کے پاس آئیں گے، بلکہ اگر کسی طرح کے بھی آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، جنات کا اثر ہے یا شیطانی چیزوں کے اثرات ہیں، تو وہ انشاءاللہ دور بھی کریں گے، کیونکہ عملیات کی دنیا میں آپ کے پاس پاور ہونا بہت ضروری ہے، بزرگوں کا بیک ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس مختلف وظائف ہونے چاہیے، پڑھائیاں ہونی چاہیے۔ وظائف جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، جن سے نہ صرف آپ شر شیاطین سے لڑ سکتے ہیں، بلکہ اپنی نیگیٹیوٹی کو بھی دور کر سکتے ہیں۔ تو حفاظت کی دعائیں پڑھ کے جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ صبح شام کی جو لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو ان کے ساتھ مدد اور نصرت بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارا اگلا جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے ایسی اسیب زدہ جگہ ہوگی جہاں جانے سے اکثر عاملین ڈرتے ہیں، لیکن ہم ضرور جائیں گے۔ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی جگہ ہے تو ضرور بتائیے گا، ہم آپ کی دعوت پہ آئیں گے۔ اور اگر آپ جادو جنات کے مریض ہیں، یا شر شیاطین کا اثر ہے، یا ایسے اثرات ہیں جو کہ کسی عمل کے قابو میں نہیں آئے، تو ہم بھی آپ کے دروازے پہ آئیں گے اور پھر آپ کا روحانی علاج بھی کریں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اب تک کے لیے آہٹ ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔